Hello students, in the previous lecture we have solved example related to the direction ratio and direction cosines. Okay, and also we have studied about the what is the product of the two vectors, and there we have taken example related to scalar product. So today we will take another product of the vector, that is called what is vector product, or we can say that is a cross product. So in this case what we will do, we will multiply two vectors in such a manner that you will get a vector quantity. So vector product, or we can say what is cross product. Vector product, or we can say what is cross product. Now suppose here any two non-zero vectors are given. Suppose this is vector OA, this is vector A, and suppose this is another vector is given vector OB, this is suppose vector B. And let us suppose that here theta is angle between vector A and vector B. Okay? And let us suppose that now here we will take unit vector perpendicular to vector A and vector B. यानी actually ये unit vector कैसा रहेगा, इस तरह से रहेगा. यानी this is perpendicular to क्या रहेगा, vector A and vector B. तो here we will take, let us suppose that here vector n cap, this is a unit vector perpendicular to vector A and vector B. Actually vector A यानी इस तरह से रहेगा, यानी इस तरह से यानी ये A को perpendicular रहेगा as well as B को. ठीक है. तो then what is here, mod of vector A, mod of vector B, sin of theta into we can say vector n cap into what is n cap. तो ये जो है this is called what is cross product of the vector A and vector B, or this is called what is vector product of vector A and vector B, and this is denoted by what is vector A cross vector B. देखो इसको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन से पढ़ते समय क्या पढ़ेंगे इसको, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B. ठीक है. तो देखो ये होगी डेफिनेशन. और यहाँ पे वेक्टर n है क्या है, दिस इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर एन वेक्टर B है. And this vector A, vector B and vector n, they form a right-handed screw system. यानी कैसा है कि अगर आप राइट हैंडेड थंब रूल लेंगे, ये वेक्टर A दिया है, ये वेक्टर B दिया है, बराबर है, तो उसका अगर आप प्रोडक्ट लेंगे तो उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, थंब के डायरेक्शन में रहेंगे. तो आप देखो थंब इज परपेंडिकुलर टू दिस बोथ द वेक्टर्स, बोथ द फिंगर्स वी कैन से, तो उसी डायरेक्शन से. तो दिस फॉर्म व्हाट इज राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम. तो यार डेफिनेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे, let us suppose that vector A and vector B are any two non-zero vectors and theta is angle between them. ठीक है, theta is what is angle between them. Then mod of vector A, mod of vector B, sin theta into we can say n cap is called cross product, or we can say what is vector product is called what is cross product, or we can say vector product of vector A and vector B, where vector n cap is a unit vector perpendicular to क्या रहेगा, vector A and vector B, where vector n cap is what is unit vector perpendicular to क्या रहेगा, vector A and vector B, and these vectors form right-handed screw system. यानी अगर आपने राइट हैंडेड स्क्रू लिया और उसको अगर आपने ऐसा रोटेट किया A to B, तो डेफिनेटली उसका रिजल्टेंट आपको मालूम है क्या होता है, दैट स्क्रू विल गो इनसाइड, यानी क्या रहता है, परपेंडिकुलर टू A एंड B रहता है. ठीक है. तो दे फॉर्म व्हाट इज राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम. तो इट इज डिनोटेड बाय, यानी क्रॉस प्रोडक्ट जो रहता है, तो क्या है यहाँ पे, क्रॉस प्रोडक्ट
ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज डिनोटेड बाय क्या रहेगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यानी इसको पढ़ते समय क्या पढ़ेंगे, इसको आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इस तरह से पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसको, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो देयरफॉर यू हैव टू रिमेंबर दिस, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप, या इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो ये हो गया व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, so now we'll take results related to this one. हाँ, तो रिजल्ट देखो फर्स्ट है, अब देखो यहाँ पे वेक्टर एन आई हैव टेकन लाइक दिस। अब वेक्टर एन यानी दूसरा वेक्टर इस तरह से भी रह सकता है, यानी यहाँ पे अगर आप लेंगे तो ये रहेगा वेक्टर एन क्या रहेगा माइनस, ये क्या रहेगा माइनस में रहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यानी दो वेक्टर रहेंगे वहाँ पे, दो यूनिट वेक्टर रहेंगे जो क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को परपेंडिकुलर रहेंगे। अब देखो फर्स्ट रिजल्ट, तो अब देखो यहाँ पे आपको ये मालूम है बाय डेफिनेशन आप वी कैन से व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट। अब आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलो या वेक्टर प्रोडक्ट बोलो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। बाय डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वी नो that what is vector A cross vector B is equal to mod of vector A mod of vector B sin theta into n cap. So now we'll find the formula for the sin theta. Suppose if you take mod of both sides, तो क्या आ जाएगा, mod of vector A cross B is equal to, अब इसका अगर आप mod लेंगे तो mod of vector n है, डेफिनेटली A लिख सकते हैं, या mod of A mod of B sin theta, और n cap का mod क्या रहेगा 1। तो देयरफॉर क्या रहेगा यहाँ पे, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन ऑफ थीटा इनटू क्या आ जाएगा 1, सिंस वी कैन से वेक्टर एन का इसका मॉड क्या रहता है 1, एंड देयरफॉर वी विल गेट फार्मूला फॉर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। देखो ये फार्मूला आपको याद रखना है, एंड इफ यू हैव टू फाइंड व्हाट इज साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो क्या है यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी है डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। आपको मालूम है डॉट प्रोडक्ट में क्या आया था, कॉस थीटा का फॉर्मूला आया था, वहाँ पे क्या था, ए डॉट बी था, है ना, वहाँ पे ए डॉट बी था। आपको मालूम है ए डॉट बी यानी क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है, नंबर आता है। अब ये यहाँ पे क्या आता है, वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर आएगा, इसीलिए उसका मॉड लेना है। ठीक है, और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, यानी तो देखो ये हो गया साइन थीटा का फॉर्मूला। उसके बाद में देखो सेकंड रिजल्ट, लेट अस कंसीडर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। लेट अस कंसीडर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए ने क्या आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए अगेन मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए ने क्या रहने वाला है 0 इंटू एन कैप। ठीक है, तो इफ यू सिंप्लीफाई दिस व्हाट विल गेट हियर, मॉड ऑफ ए स्क्वायर वी कैन राइट। अब साइन 0 यानी क्या होता है 0 इंटू व्हाट इज एन कैप, एंड 0 इंटू एनीथिंग यानी क्या हो जाएगा 0। अब देखो ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, इसीलिए यानी यहाँ पे क्या करना है, वेक्टर 0 लिखना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए यानी वेक्टर 0। देखो थोड़ा डॉट प्रोडक्ट और इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, यानी अगर आप देखेंगे दो वेक्टर अगर दिया होगा ए डॉट ए क्या आता है, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर आता है। देखो ए डॉट ए यानी क्या आता है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर आता है, मगर यहाँ पे ए क्रॉस ए यानी क्या आ रहा है, वेक्टर 0 आ रहा है यानी। ठीक है, उसके बाद में देखो थर्ड, let us consider वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। अब देखो अगर आप वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए साइन ऑफ थीटा, और अब देखो यहाँ पे बी और ए को जो परपेंडिकुलर वेक्टर रहेगा क्या रहेगा, माइनस एन कैप रहेंगे, यानी तो यहाँ पे रहेगा व्हाट इज माइनस एन कैप। So this can be arranged. So we can write here mod of A, mod of B, sin theta, and देखो ये जो माइनस साइन है इसको मैं स्टार्टिंग में लिख लेता हूँ, तो ये माइनस आ जाएगा इंटू एन कैप। एंड नाउ सी बाय डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वी नो दैट mod of A mod of B sin theta n कैप यानी क्या होता है, ए क्रॉस बी।
एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट विल गेट माइनस साइन ए क्रॉस बी। एंड देखो यहाँ पे क्या रहा है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता, दैट मीन्स वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर। यानी देखो इसका मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। आपको मालूम है डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए आता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए आता है। मगर देखो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, अगर आप दो वेक्टर का ऑर्डर चेंज करें तो साइन चेंज हो रहा है। रिजल्ट इज डेफिनेटली यूजफुल, मगर यहाँ पे ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है। यानी अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर का ऑर्डर अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे साइन चेंज होगा। तो इससे आप ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। देयरफॉर क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे इसको प्रूव दैट के फॉर्म में लिख लेते हैं। प्रूव दैट वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी इफ एंड ओनली इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर 0। आपको पता था कि दो वेक्टर पैरेलल है तो वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीप्लाई अदर वेक्टर रहता है, ये मालूम है रिजल्ट। मगर अब देखो यहाँ पे A is parallel to B, that means vector A and vector B are collinear if and only if their cross product is 0। तो इसको भी आप चाहे तो अपन प्रूव कर सकते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे दो पार्ट है, सपोज पार्ट फर्स्ट, सपोज वेक्टर A is parallel to vector B and then to prove क्या देगा, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B is equal to वेक्टर 0। देखो इसको प्रूव करना है। अब आपको मालूम है यहाँ पे दो वेक्टर पैरेलल है, तो वी कैन से सिंस वेक्टर A इज पैरेलल टू वेक्टर B, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। कोलिनियर है तो थीटा 0 रहेगा। देन कंसीडर, आपको क्या प्रूव करना है, A क्रॉस B इक्वल टू 0। तो कंसीडर वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन ऑफ यू विल गेट 0 इंटू वेक्टर n कैप। Therefore you will get here mod of vector A mod of vector B 0 into n कैप, यानी ये आ जाएगा वेक्टर 0, क्योंकि साइन 0 यानी क्या होता है 0। तो देखो यानी वेक्टर A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, तो इसका मतलब दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहता है, 0 रहता है। आपको याद होगा तो डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो वेक्टर क्या रहता है, परपेंडिकुलर। डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो वेक्टर परपेंडिकुलर, और क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है तो वेक्टर्स क्या रहते हैं, पैरेलल। तो देखो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आल्सो आप प्रूव कर सकते हैं इसको। देखो पार्ट सेकंड, इसको कॉन्वर्स बोल सकते हैं आप। तो कॉन्वर्स में क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज ये गिवन है वेक्टर A क्रॉस B इज इक्वल टू 0 वेक्टर, एंड देन टू प्रूव व्हाट इज वेक्टर A इज पैरेलल टू वेक्टर B। वेक्टर A is parallel to वेक्टर B। तो कंसीडर दिस गिवन थिंग, कंसीडर कर लो, वेक्टर A क्रॉस B इज इक्वल टू वेक्टर 0। अब देखो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन ऑफ थीटा इंटू वेक्टर n कैप इज इक्वल टू व्हाट इज 0। ठीक है, 0 बार। अब देखो आपको मालूम है वेक्टर A डेफिनेशन में एज्यूम किया था वेक्टर A नॉन जीरो है, वेक्टर B आल्सो नॉन जीरो है, और वेक्टर n कैप ये तो यूनिट वेक्टर है, यानी ये भी 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, 0। अब इसमें 0 वेक्टर नहीं लेना क्योंकि स्केलर है। साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब साइन थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, साइन ऑफ 0 इज 0, यानी इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एंड देयरफॉर वी कैन से वेक्टर A इज पैरेलल टू वेक्टर B। तो देखो यानी ये रिजल्ट याद रखना है कि दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 रहेगा, और क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर्स आर व्हाट इज वी कैन से पैरेलल। अब सपोज अगर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया होगा, वेक्टर A एंड वेक्टर B आर नॉन जीरो, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू अगर 0 कैप है, अगर सपोज यहाँ पे A और B अगर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया होगा कि वेक्टर A एंड वेक्टर B नॉन जीरो वेक्टर है करके, तो ये केस में क्या रहेगा कि वेक्टर A में भी 0 और वेक्टर B में भी 0
आर वी कैन से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर व्हाट इज कोलिनियर। ये तीनों पॉसिबिलिटी रह सकती है। अगर वहाँ पे ऐसा दिया होगा कि वेक्टर के बारे में कोई भी रिस्ट्रिक्शन अगर नहीं दिया होगा तो ऐसा भी रह सकता है, क्योंकि इसको मैंने अगर सिंप्लीफाई किया तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू वेक्टर एन कैप। अगर वेक्टर ए 0 है इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड 0 रहेगा, 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या वेक्टर बी अगर 0 वेक्टर है तो उसका मॉड क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये केस में भी हो सकता है, मगर क्रॉस प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है उसमें क्या एज्यूम किया था बने, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, तो इसीलिए सीधा सीधा ये लिख सकते हैं अपन। उसके बाद में देखो फिफ्थ रिजल्ट है, हाँ तो देखो अब यहाँ पे फिफ्थ रिजल्ट में क्या है, वेक्टर ए क्रॉस अगर के वेक्टर बी अगर दिया है तो दिस कैन बी रिटन एज के आउटसाइड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यानी ये के क्या है, स्केलर है, के क्या है, नॉन जीरो स्केलर है। या सपोज अगर ऐसा दिया होगा यहाँ पे एम वेक्टर ए क्रॉस एन वेक्टर बी, तो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट इज एम एन वेक्टर ए क्रॉस बी। यानी क्या करना है आपको, स्केलर स्केलर को मल्टीप्लाई कर लेना है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहेगा, दो वेक्टर के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, के एम एंड एन आर क्या है, नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो स्केलर, सॉरी नॉन जीरो स्केलर्स है, ठीक है। जैसे डॉट प्रोडक्ट में वैसे यहाँ पे भी है। उसके बाद में देखो यहाँ पे अगेन यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अगर दिया है तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी प्लस व्हाट इज ए क्रॉस सी। यानी इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी इसको बोलेंगे लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड से, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और अगर ये इस तरह से दिया होगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दिया है और क्रॉस वेक्टर ए दिया है, ठीक है, इस तरह से दिया होगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, इसको बोलेंगे राइट। तो इसको क्या बोलेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यानी इसका मतलब देखो डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव और क्रॉस प्रोडक्ट आल्सो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, वहाँ पे दोनों इसमें ट्रू है यानी, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे विल टेक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ व्हाट इज यूनिट वेक्टर्स। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर में यानी क्या रहेगा, देखो तो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, जेड एक्सिस है। सपोज यहाँ पे वेक्टर आई दिया है, आई कैप, यहाँ पे जे कैप और ये के कैप। तो सपोज यू फाइंड या वेक्टर आई कैप क्रॉस आई कैप, आप डायरेक्टली लिख सकते, क्यों, क्या आएगा, देखो आपको मालूम है दो वेक्टर अगर सेम है तो उसका प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। यानी इसका मतलब आई क्रॉस कैप आई क्रॉस या जे क्रॉस कैप जे क्रॉस इज इक्वल टू के क्रॉस, यानी के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू वेक्टर 0। तो सिंस यहाँ पे ये लिख सकते हैं ए क्रॉस ए इक्वल टू क्या है, वेक्टर 0। देखो ये रिजल्ट, मगर आपको याद होगा तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आया था, आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के क्या आया था, 1 आया था, समझे कि नहीं, वहाँ पे क्या आया था, 1। अब देखो ये 0 वेक्टर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट यानी क्या, वेक्टर प्रोडक्ट है। हाँ, तो उसके बाद में देखो वेक्टर आई कैप क्रॉस जे कैप क्या आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मॉड ऑफ वेक्टर आई मॉड ऑफ वेक्टर जे साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम आई एंड जे। देखो आई और जे क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। और अब देखो ये दोनों को यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर कौन सा है, के कैप है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के कैप, बिकॉज वी नो दैट आई जे एंड के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1 साइन थीटा साइन 90 ऑल्सो 1 और क्या आ जाएगा, के कैप, एंड देयरफॉर विल गेट वेक्टर आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू क्या रहा, के कैप। देखो आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू क्या रहा, के कैप वी आर गेटिंग। इन केस अगर आपको जे कैप क्रॉस आई कैप फाइंड करना है, क्या आएगा, देखो ये रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। क्या दिया यहाँ पे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी क्रॉस, यानी इफ यू चेंज द ऑर्डर
ऑफ द वेक्टर्स इन द क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, साइन चेंज, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा ये वेक्टर आई कैप क्रॉस, सॉरी क्या आ जाएगा, हाँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू, यानी ये आई क्रॉस यानी के आ रहा, तो ये क्या आ जाएगा, डेफिनेटली माइनस के आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, माइनस के, साइन चेंज होगा वेक्टर का, जो भी आ रहा है यानी उसका साइन चेंज हो जाएगा यानी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में देखो, क्योंकि अगर आप वेक्टर का ऑर्डर चेंज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। अब इसके बाद में देखो, सपोज अब जे क्रॉस के, वेक्टर जे कैप क्रॉस के कैप, देखो क्या जाएगा, मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मॉड ऑफ सेकंड वेक्टर साइन ऑफ एंगल बिटवीन जे एंड के अगेन 90 डिग्री, और अब देखो दोनों को परपेंडिकुलर वेक्टर, जे और के को परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा है, आई, तो ये आ जाएगा आई कैप, यानी ये आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू वेक्टर आई कैप, एंड देयरफॉर वेक्टर जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू क्या रहा, आई कैप। देखो जे क्रॉस के इज इक्वल टू क्या रहा, आई कैप। अगर आप दोनों का ऑर्डर चेंज करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो देयरफॉर वी कैन से, सिमिलरली वी कैन से के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस आई कैप, ठीक है। और उसी तरह से आप ये भी फाइंड कर सकते हैं, कंसीडर वेक्टर के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप क्या जाएगा, देखो अब यहाँ पे मॉड ऑफ फर्स्ट टर्म मॉड ऑफ सेकंड टर्म साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, वन सेकेंड 90 डिग्री आएगा, क्योंकि आपको मालूम है आई जे के परपेंडिकुलर है म्यूचुअली, और क्या है, दोनों को परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा है, जे कैप है, यानी वी विल गेट 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू व्हाट इज जे कैप, एंड देयरफॉर वेक्टर के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप, एंड देयरफॉर व्हाट इज आई कैप क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस जे कैप। अब देखो इसको कैसे याद रखना, आपको मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, दो वेक्टर सेम है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 1 आता है, वो डिफरेंट होंगे, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई क्या आता है, 0 आता है, क्योंकि आपको मालूम है दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, मगर क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, वेक्टर आ रहा है, वी आर गेटिंग थर्ड वेक्टर। तो देखो इसको याद रखने के लिए देखो इस तरह से अगर आपने एक सर्कल कंसिडर किया, अब ये सर्कल में क्या करना है, देखो वेक्टर आई जे कैप और के कैप, ये 3 वेक्टर ले लेना है और इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लो। देखो ये डायरेक्शन वी आर टेकिंग इन द एंटी क्लॉक डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो अगर आपको आई क्रॉस जे फाइंड करना है, आई क्रॉस जे यानी जो रिमेनिंग वेक्टर रहेगा वो आएगा। देखो अगर आपको क्या करना है, वेक्टर आई कैप क्रॉस जे कैप, तो देखो ये डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज में तो क्या बचा है, के कैप बचा है, तो ये आ जाएगा के कैप। यानी अगर आप ये जो डायरेक्शन शो किया मैंने, ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। मगर अगर सपोज मैंने ऐसे लिया, आप जे कैप क्रॉस आई कैप, डेफिनेटली के तो आने वाला है, 100% के आएगा, तो रिमेनिंग वेक्टर आएंगे वहाँ पे। मगर अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन अपोजिट टू दिस डायरेक्शन जा रहे हैं, जो डायरेक्शन मैंने डायग्राम में शो की उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, माइनस के आ जाएगा। इजी टेक्निक है याद रखने की। अगर आपको सपोज यहाँ पे वेक्टर जे कैप क्रॉस के कैप फाइंड करना है, बिल्कुल आंखें बंद करके आप बोलते थे क्या आने वाला है, आई कैप आने वाला है। अब पॉजिटिव कि निगेटिव, तो इस तरह से डायग्राम ड्रा कर लो। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे कैप क्रॉस, देखो जे कैप क्रॉस ये क्या आएगा, आई कैप पॉजिटिव रहेगा। मगर ये अगर मैंने वेक्टर के कैप क्रॉस जे कैप लिया तो डेफिनेटली आई कैप आने वाला है। मगर अब देखो यहाँ पे सीक्वेंस आई कैप क्रॉस जे कैप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी माइनस आएंगे यानी, ठीक है। तो ये सर्कल से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ व्हाट इज यूनिट वेक्टर। अब उसके बाद में देखो इन द डेफिनेशन, तो वी कैन टेक हियर व्हाट इज 8th रिजल्ट। अब देखो वी नो हियर वेक्टर ए इज लाइक दिस, ये वेक्टर बी है, और यहाँ पे मैंने क्या लिया था, यहाँ पे देखो क्या लिया था मैंने, वेक्टर एन कैप लिया था, और मैंने ये बताया था कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर एन कैप, यानी ये दोनों का जो रिजल्टेंट है,
आपको मालूम है क्या आया था, वेक्टर ए क्रॉस बी। देखो आपको ये मालूम है, देखो वंस अगेन आई विल राइटिंग हियर, बाय डेफिनेशन ऑफ वी कैन से क्रॉस प्रोडक्ट। क्या मालूम है आपको, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन ऑफ थीटा इनटू क्या है, एन कैप। बराबर है, ये एन कैप है, ये थीटा है, ठीक है। ये वेक्टर ओ है और ये वेक्टर ओ बी है, ये आपको मालूम है। अब देखो इसमें अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या, ये स्केलर है, ये स्केलर है, ये भी स्केलर है, यानी इसका मतलब क्या रहा, वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या रहा, स्केलर टाइम्स ऑफ वेक्टर एन कैप। बराबर है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर ए क्रॉस बी क्या रहेगा, पैरेलल टू वेक्टर एन कैप रहेगा। क्लियर है, बराबर है, यानी इसका मतलब देखो वेक्टर ए क्रॉस बी क्या रहता है, एन कैप को पैरेलल यानी ये डायरेक्शन में रहेगा, यानी वेक्टर ए क्रॉस बी है ना, ये दोनों का रिजल्टेंट करके बताया था मैंने, क्या रहता है, ये डायरेक्शन में, एन कैप के डायरेक्शन में रहेंगे, यानी ठीक है। तो देयरफॉर वेक्टर ए क्रॉस बी और वेक्टर एन की डायरेक्शन क्या सेम है, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज पैरेलल टू क्या रहेगा, एन कैप एज मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा क्या है, आर स्केलर्स, ठीक है। यानी अब देखो इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं कि एन कैप इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो दैट मीन्स आप क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर वेक्टर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए क्रॉस बी है, ठीक है। अब आपको यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मालूम है, बिल्कुल स्टार्टिंग में लिया था। अगर वेक्टर ए बी दिया है और अगर ई कैप अगर यूनिट वेक्टर है तो आपको फॉर्मूला मालूम है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, वेक्टर एन इज ए क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए क्रॉस बी है, यानी इसका मतलब क्या आ जाएगा, वेक्टर एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड। देखो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर एन कैप क्या है, दिस इज ए वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी है, तो देयरफॉर एन कैप इज इक्वल टू क्या, वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। मगर अब देखो यहाँ पे वेक्टर एन कैप यानी क्या है, दिस इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्या है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है। तो इसीलिए ये फॉर्मूले को इस तरह से याद रखना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यूनिट वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है डिवाइडेड बाय क्या करना है, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। तो देखो प्रूफ नॉट इम्पोर्टेंट, तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी अगर फाइंड करना है तो ये फार्मूला है, वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन क्या रहेगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, ठीक है। यानी इन केस सिमिलरली अगर ऐसा दिया होगा, अगर आपको ये फाइंड करना है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर पी क्यू एंड वेक्टर पी आर, परपेंडिकुलर टू वेक्टर पी क्यू एंड वेक्टर पी आर, क्या करेंगे यहाँ पे फार्मूला, वेक्टर पी क्यू क्रॉस वेक्टर पी आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू क्रॉस वेक्टर पी आर। देखो दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग, मगर ये क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर के लिए फार्मूला रहेगा, यानी क्या करना है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और उसको क्या करना है, उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड रहेगा उससे डिवाइड करना है। तो देखो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो वेक्टर ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू क्या रहेगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यानी अगर आपको ऐसा कोई वेक्टर फाइंड करना है जो परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी फाइंड करना है, तो दैट इज गिवन बाय व्हाट इज ए क्रॉस बी। अब इसका काम आपको डायरेक्शन रेशियोज में गिरने वाला है। बाद में कैसा है कि सपोज एक लाइन दी है यहाँ पे, ये दूसरी लाइन है, अब ये दो लाइन के अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज मालूम है और अगर आपको डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस टू लाइन फाइंड करना है, तो ये केस में क्या करना पड़ता है कि ये डायरेक्शन में सपोज एक वेक्टर दिया है, ये डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर दिया है, तो ये दोनों को परपेंडिकुलर वेक्टर यानी कौन सा रहेगा, वेक्टर ए क्रॉस बी।
तो ये कंसेप्ट बाद में आपको यूज़ करना है। तो ये हमेशा याद रखना है कि ए क्रॉस बी हमेशा क्या रहता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों को भी परपेंडिकुलर रहता है। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर अगर सिंगल है तो ये फॉर्मूला रहेगा। अगर आपको 2 यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, अगर आपको 2 यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या करना है, प्लस माइनस साइन लेना है। अगर आपको 2 यूनिट वेक्टर अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, प्लस माइनस का साइन लेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो लास्टली, अब देखो अगर ये दिया होगा इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू a2 i कैप, सॉरी इसमें अपन क्या करेंगे, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। देन अगर आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर फाइंड करना है तो देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, देखो ये फॉर्मूला है, वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप, यानी पहली रो में क्या करना है आपको, वेक्टर आई जे एंड के लेना है। उसके बाद में वेक्टर ए पहले दिया तो वेक्टर ए के कंपोनेंट a1 a2 a3 और ये आ जाएगा b1 b2 b3। देखो अगर आपको इसको भी प्रूव कर सकते हैं अपन, क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट प्रूव कर सकते हैं। अगर आप दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करते समय आप ये वाले रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद में अगर आप उसको कलेक्ट करेंगे तो आपको वेक्टर ए क्रॉस बी को डिटरमिनेंट के फॉर्म में इस तरह से आई जे के, पहली रो हमेशा क्या रहेंगी, वेक्टर आई जे के कैप, और बाद में वेक्टर ए है तो ए के कंपोनेंट रहेंगे, बाद में वेक्टर बी के कंपोनेंट। तो प्रूफ इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो डायरेक्टली विल एज्यूम दिस, मगर इजीली प्रूव कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो ठीक है, तो ये सब रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है क्रॉस प्रोडक्ट के, ठीक है, याद रहेंगे। तो ये सब रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल सी व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट and then we'll take example related to cross product, will take, ठीक है। चलो, थैंक यू।